Hello friends and welcome to this lesson. In today's lesson we are going to talk about something very important. We are going to talk about strategies for successful persuasive speaking. दोस्तों आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और वो विषय है अगर किसी को अपनी बात मनवाने के लिए हमें कोई स्पीच देनी है या कोई बातचीत करनी है तो उसे हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसी को बोलते हैं परसुएसिव स्पीकिंग. नाउ द पर्पसेस ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग twofold. One is the macro or the bigger purpose, which is to inform and persuade. See, if you don't inform, how will you persuade? So a lot of information needs to be provided in order to persuade the people. And the micro purpose or the ingrained purpose is, the precise thing that we want to communicate. What is the idea? What is the concept? What is it around which this whole persuasion and the information is woven? दोस्तों हम कुछ भी अगर किसी चीज़ के लिए हम लोगों को तैयार करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इसमें दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं. एक होता है कि हम किस बात की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और किस चीज़ के लिए उन्हें तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपा होता है हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, जो कि हम उन्हें उस इंफॉर्मेशन के थ्रू और उस परसुएशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ये बड़ी गूढ़ बात है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है. So friends, let's see how we organize our persuasive speaking. So the introduction of anything, the beginning is a very important thing, because in the beginning, if you are able to capture their attention, then you are going to keep their attention a little longer, and that will give you a chance to be able to inform them better and to build persuasion into whatever you are doing. So we have a very simple strategy for the introduction, which is called the PAL. The porch, the aim, the layout. The porch is the front part of a house, the place where people go and get down from the car. Sometimes there'll be a car porch. That means you can take the car up to the steps of the house or to the entrance of the house. So porch is the beginning, the entrance to something. So that's why we are calling it porch. Aim, of course, is the objective, and layout is how we lay it out. So let's look at it one after the other. दोस्तों हम एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए. इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन के थ्रू ही हम लोगों का जो ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, उसे फिर उसमें जो भी हमारी टॉक है उसमें रख पाते हैं, और उसका प्रयोग फिर जो भी हम अपनी बात उनसे मनवाना चाहते हैं, जो बात उन्हें समझाना चाहते हैं, उसे समझाने के लिए करते हैं. और इंट्रोडक्शन को हमने 3 भाग में बांटा है: पोर्च, एम और लेआउट. पोर्च किसी भी जगह के फ्रंट पोर्शन को कहते हैं, तो हमारी टॉक का जो फ्रंट पोर्शन है वो हमारा पोर्च है. और फिर एम हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा ध्येय है, और लेआउट हम अभी देखेंगे. तो पोर्च इज नथिंग बट द ओपनिंग स्टेटमेंट, and the opening statements may be related to some experience, some story, some anecdote that is connected to what you are going to talk about, through which you will take the attention of the audience into your own hands. Sometimes we also use quotations. We greet the audience. We make a shocking statement in order to make them sit up, in order to make them leave their mobile phones, leave everything that they are doing. Sometimes we will ask questions to get them to start thinking. दोस्तों जो इंट्रोडक्शन है, जो ओपनिंग है, ओपनिंग का भी जो पहला पार्ट है, द पोर्च, स्टार्टिंग पार्ट, वहाँ पे हम कोई कभी कहानी सुना सकते हैं, एनेक्डोट सुना सकते हैं, कोई ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिससे लोग सभी शॉक्ड हो जाएं. कुछ ऐसे सवालों को उठा सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होकर वो उस विषय में सोचना शुरू कर दें. आप किसी का कोटेशन दे सकते हैं, किसी महान व्यक्ति ने कुछ कहा उसकी बात कर सकते हैं जिससे वहाँ भी सोचना शुरू हो जाए.
आप उनका स्वागत करते हैं गरिमा के साथ, प्रेम के साथ, वो भी एक तरीका है। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं अपने किसी भी परसुएसिव, क्या किसी भी और टॉक की भी आप शुरुआत इसी प्रकार से कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द एम। द एम इज ऑफ कोर्स द पर्पस and why you are here. So in a very concise, in a very precise, in a very exact way, tell people why you are there, so that people will have a clear cut idea of what they can look forward to. दोस्तों, इंट्रोडक्शन ही वो टाइम है लोगों के दिमाग से कन्फ्यूजन को हटा देना है। वहीं उन्हें हमें बता देना है कि हम किस लिए आए हैं, हमारा एग्जैक्ट पर्पस क्या है। ये नहीं बोलना कि आपकी जेब से पैसा निकलवाने आए हैं, ये भी नहीं बोलना कि आपको ये बेचने आए हैं। ये कहना है हम आज आपके सामने कुछ ऐसा लेके आए हैं जो हम चाहते हैं कि आप देखें और उसके बाद आप निर्णय करें कि ये वस्तु आपके जीवन को और सरल सुगम बना देगी या नहीं। इस तरह से हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में कहेंगे। नाउ वी कम टू द लेआउट। लेआउट इज नथिंग बट योर रोड मैप. It means setting the agenda, what all you are going to cover. So if you have this in the beginning, your audience is going to know what to expect in the presentation, and this will keep their attention to what is going on, and it will also build their expectations. दोस्तों, जब हम लेआउट पे आते हैं इंट्रोडक्शन के थर्ड पार्ट पे, तो यहाँ पे हम उन्हें ये बता देते हैं कि हम क्या क्या बताने वाले हैं, जिससे उनकी भी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी क्यूरियोसिटी जाग जाए, उन्हें लगने लगे अच्छा ये भी आएगा, ये भी आएगा, चलो बैठते हैं, सुनते हैं, लेट्स सी। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन को करते हैं। अब देखें हम बॉडी में हम क्या क्या करते हैं। तो मेन बॉडी जो होती है उसी में सारा डिस्कशन होता है। हमने बात की हुई है डिफाइन, रिफाइन एंड कन्फाइन की। तो अब हम रिफाइन पार्ट पे आ गए। तो रिफाइन में हम 2-3 तरीके से अपने टेक्स्ट को या अपना जो भी मैटर है उसको बांट सकते हैं। टॉपिक्स के रूप में चीज़ें कैसे होंगी एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से, उसके रूप में, या कॉज टू इफेक्ट के रूप में। Friends, we can organize our content in 3 ways. One is in the form of topics. So that is a topical organization. Another is beginning to end, chronological. What happens first, what happens next, then, depending upon the kind of subject. And otherwise cause and effect, cause to effect organization. So let us see how we are going to actually create this kind of thing. So one of the first ways in which you can do it is you talk about the problem, then you talk about the solution for some change. Another way is when you talk about a problem, you talk about a solution, but you don't want a change. So that both the things, let's look at it. So problem, solution for change. So here we say that when something is bad, when something is wrong, then we need to do something about it. So in the beginning itself of this problem solution for change thing, you need to establish that something is bad. Unless your audience believes that something is bad, why should they look for a solution? And even when you try to prove something is bad, not everybody in the audience will agree. So you have to prove to them that there is a problem that exists and a change is required. दोस्तों, अगर हम लोगों के सामने ये कहने गए हैं कि कुछ खराबी है, कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई चेंज आना ज़रूरी है, कोई सोल्यूशन की तलाश ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो लोगों को ये कन्विंस करना हमें कि कोई प्रॉब्लम भी है। नहीं तो कई बार लोग कहेंगे नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन की क्या ज़रूरत है। सो हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा। तो पहला कदम और सारा परसुएजन, एविडेंस, ये सब आपको लाना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है। सो जब एक पार्टी कहती है प्रॉब्लम है तो दूसरी पार्टी कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और इसके लिए भी आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है ना फ्रेंड्स. दिस इज द नेक्स्ट साइड, द ऑपोजिट साइड, वेयर यू से दैट नो चेंज इज रिक्वायर्ड बिकॉज देर इज नो प्रॉब्लम. So here you have to prove that there is no problem whatsoever, and you have to use your examples, you have to use your evidence, you have to use everything to prove there is no problem. So the current situation is absolutely fine and we need to continue. दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर हम ये अप्रोच ले रहे हैं कि प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन के लिए कुछ चेंज होना है, कुछ सोल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रूव करना पड़ेगा प्रॉब्लम है. लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है हम दूसरी साइड हो जहां पे हम ये प्रूव करेंगे देयर इज नो प्रॉब्लम, सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, जैसा अभी चल रहा वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई चेंज नहीं चाहिए. आप ज्यादातर पार्लियामेंट्री डिबेट्स में और भी कई डिबेट्स और भी कई डिस्कशंस जो कंपनीज में भी होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, जिसमें एक पार्ट है लोगों का जो प्रूव करना चाहते हैं प्रॉब्लम है, चेंज चाहिए. दूसरा है जो कहता है नो प्रॉब्लम, सब सही है, कोई चेंज नहीं चाहिए. तो आपको इन दोनों का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना. आपको इन दोनों का एक्सपर्ट बनना है कि प्रॉब्लम है तो भी और प्रॉब्लम नहीं है तो भी. और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, और इसलिए हमें अपना पॉइंट आर्ग्यू करना चाहिए कि एक तरफ लोग हैं जो कह रहे हैं चेंज होना चाहिए, दूसरी तरफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए. सो दिस टसल विल ऑलवेज बी देयर. And you have to find a way to break this deadlock, where one part is saying nothing, one part is saying something, and everybody is on either part is polarized and they are saying that it is not required, these people are saying it is required. So दोस्तों ऐसा बहुत होता है जब हम विभाजित हो जाते हैं और आधे लोग कहते हैं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहेगा. कुछ लोग कहते हैं नहीं जी प्रॉब्लम कैसे नहीं है. सो यू हैव टू हैव persuasive capability to prove whichever side you are on or whichever side is the right side. Now let's look at the summary or conclusion. तो हमने सारा शुरुआत में बता दिया था कि क्या है, कौन सी बातें करेंगे, क्या एजेंडा है. फिर हमने फाइट किया बीच में कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर पाएं कि प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीज़ें. अब हम समरी कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने ऑडियंस को क्या बताया, कोई और हम विजुअल्स या कोई और एनालिसिस उनके सामने पुट अप करना चाहते हैं कंक्लूजन के टाइम बेस्ड ऑन जो हमने बातें की मिडिल में, दैट इज़ फाइन. और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर हम कह रहे हैं कि भाई सोल्यूशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो लास्ट कॉल टू एक्शन, जिससे यहां भी कुछ लोग हो सकता है आपके साथ हो जाएं, एक फाइनल अपील. और अगर आप ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई कोई चेंज नहीं चाहिए, तो भी एक फाइनल अपील के लोग इस समय भी हो सकता है आपके कंक्लूजन को सुन के और आपके साथ हो जाएं. फ्रेंड्स, नाउ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर टॉक ऑन दिस परसुएसिव टॉक, दैट you tell the audience what you told them. You can use graphics or some information graphics, some visual aid to show them what you had said during the presentation, and one final call to action at the end, whether you want change or you don't want change. Tell them at the conclusion stage whatever you summarize and make a powerful call to action. It may be that at this time there will be some people who will get converted to your point of view, whether there is a solution required that you are saying, or you are saying no solution is required. So persuasive speaking is a completely different ball game. In persuasive speaking, you need a lot of evidence, you need a lot of illustrations, you need a lot of examples. So today we have spoken about the general strategy for persuasive
स्पीकिंग। दोस्तों, किसी बात के लिए लोगों को तैयार करना और उसका कम्युनिकेशन एक बहुत टफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कई प्रकार के उदाहरण, डेटा, ये सब हमें उनके सामने तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आज हमने इसके स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। कल हम हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग विथ एविडेंस इसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक दिस स्ट्रॉन्ग with your evidence, what kind of evidence to bring so that people will be persuaded to your point of view. So friends, I hope you have enjoyed this lesson. I'll see you in the next. Until then, all the best.